On to the battle for Bihar now. All eyes are on Chirag Paswan. Will he and his party be the X factor in the upcoming elections? India Today's Ankit Tyagi hit the campaign trail with LJP chief Chirag Paswan, who after splitting with the BJP, is now saying that he is fighting against Nitish Kumar and not against the Prime Minister Modi. Chirag Paswan has also declared that he will never go with the Mahagathbandhan. Chirag, you were talking about how difficult it has been to start this campaign for the first time without your father. Yes, of course. It's been difficult and I definitely miss him a lot. This is for the first time ever in my life. I'm out like this without my father. And just by the virtue that I used to have his back, things were mentally very easy for me. Psychologically, it used to help me a lot. But having said that, this was his dream. He wanted that Bihar first, Bihari first should take over the entire campaign. And this is a change that we are offering to the people of my state. And I hope and I'm very confident the kind of acceptance that Bihar first, Bihari first is getting, the kind of support this campaign is getting. I'm very confident that this would be the last time our current Chief Minister will be the Chief Minister. Henceforth, there will be the change in the Bihar. The कोशिश यही है जिसको कहते हैं to try and reach out to maximum number of people and at least on the constituencies where they have a strong candidate, try and turn the tide. Chirag, JDU, many in the JDU have been saying कि आप तो BJP की B टीम है, confusion फैलाने के लिए आए हैं, BJP ने ही आपको pop up किया है. मुझे क्या जरूरत है किसी की B टीम बनने की? मेरी 20 साल पुरानी पार्टी है. मेरे पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी, उनका 51 साल का बेदाग सक्रिय राजनीति का अनुभव है. मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी आइडियोलॉजी है. बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ मैं जनता में आया हूँ. जो लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि मैं किसी की बी टीम हूँ या मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं स्पष्ट बोल दूं, लोक जनशक्ति पार्टी सिर्फ और सिर्फ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के एजेंडे के साथ काम कर रही है. पर दिक्कत यह है कि बीजेपी के नेता भी मानने को तैयार नहीं है. वो बीजेपी के नेता जेडीयू में साथ में खड़े होकर बोलते हैं आपको बार बार. कुछ लोग कहते हैं आप वोट कटवा हैं, कुछ कहते हैं कि आप भ्रम फैला रहे हैं वोटर्स के बीच में. यू आर वर्किंग अगेंस्ट दी एनडीए और आप भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे चुनाव में. वेल, आई एम विद द प्राइम मिनिस्टर. प्रधानमंत्री जी की जो विकास की सोच है, मैं उसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ. और जो लोग मुझे लेकर भ्रम फैलाते हैं या जो लोग ऐसी बातें कह रहे हैं, वो किसके विचारों को दे रहे हैं मैं वो भी समझ रहा हूँ. भले आवाज इनकी हो, दे माइट बी वॉइसिंग, बट द थॉट्स बिहाइंड देयर वॉइस comes from our chief minister. So that is also very clear. Having said that, it doesn't really matter, it doesn't bother me. They can say whatever that they want to say. At the end of the day, the results will tell कि कौन सही था, कौन गलत था. But Chirag, you've been continuously saying, आप बार बार अपनी हर रैली में कहते हैं that हर जगह पे आप ये कह रहे हैं नीतीश कुमार का लास्ट टर्म होगा, he is fighting his weakest election. आपको अगर ये दिख रहा है, एक युवा नेता को अगर दिख रहा है, 38 साल के चिराग पासवान को दिख रहा है, सो इतनी अनुभवी पार्टी बीजेपी को नहीं दिख रहा. उनकी क्या मजबूरी है कि वो अभी भी उनके साथ खड़े हुए? ये तो वही बेहतर बता सकते हैं. जिन मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना आक्रोश है, उसके बाद भाई भारतीय जनता पार्टी क्यों उनके नेतृत्व में जाना चाह रही है, इसका बेहतर जवाब तो वही दे पाएंगे. Why don't you think then the Prime Minister is reining his party leaders, those who have been calling you names, some even going to the extent of saying that you are trying to fight this on the sympathy of your father's demise? जो लोग ये बोलते हैं कि मैं अपने पिताजी की मौत पर राजनीति कर रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को. मतलब अभी मेरे पिताजी को गए हुए 12-13 दिन नहीं हुए, कल उनकी 13वीं थी. और आज अगर आज इस तरीके से ये लोग शब्दों का प्रयोग करेंगे, थोड़ी तो संवेदना रखिए. आज मेरे पिताजी का निधन हुआ है, एक ऐसे व्यक्ति का जो आज से कुछ दिन पहले आप ही के मंत्रिमंडल में आपके सहयोगी थे, और उनके बेटे के बारे में आप इस तरीके से कह रहे हैं कि वो उनकी मौत के ऊपर राजनीति करेंगे. मुझे लगता है जनता सब देख रही है, सुन रही है, अपने आप समय आने पर जवाब दिया जाएगा. दो गठबंधनों की लड़ाई दिख रही है, एक एनडीए की और दूसरी महागठबंधन की. एलजेपी की पोजीशन क्या है? वेयर आर यू पोजीशन इन दिस इलेक्शन? वेल, मुझे लगता है हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, किसी भी और दल से ज्यादा. और मेरा विश्वास है कि सबसे ज्यादा सीटें हम लोग जीत कर आएंगे. और उसके बाद सही मायनों में डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में, प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार हम लोग बनाएंगे. पर वो तो बार बार दोहराते हैं कि कुछ भी हो जाए, नंबर्स कितने भी आए, द चीफ मिनिस्टर इज गोइंग टू बी नीतीश कुमार. सुशील मोदी बार बार यही बात दोहराई, बाकी नेता भी यही बात कह रहे हैं. आप जब ये कहते हैं तो बीजेपी आपका साथ लेने को तैयार नहीं है और आप जबरदस्ती उनको साथ देने को घूम रहे हैं. हाँ, तो उनको बोले कि ये भी अनाउंस कर दें
कि कल को भाजपा और जदयू मिला के अगर उनके आंकड़े पूरे नहीं हुए तो वो मेरा समर्थन नहीं लेंगे। कर दे अनाउंस कि उनको लोक जनशक्ति पार्टी के विधायकों की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी सरकार बनाने के लिए, अगर संख्या कम हुई, क्योंकि संख्या तो डेफिनेटली कम हो रही है। नीतीश जी दहाई का भी आंकड़ा पार कर लें तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आप कह रहे हैं कि ये हंग असेंबली वाली सिचुएशन हो सकती है? देखिए सिचुएशन क्या होगी नहीं होगी, बट हाँ इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो भी परिस्थिति होगी वो इस बार बिहार के हित में होगी। तेजस्वी यादव ने अभी बयान दिया, उन्होंने कहा कि आपके साथ ठीक नहीं हुआ है। आपकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने नीतीश जी पर जमकर हमला बोला, तेजस्वी पर आप कुछ खास बोले नहीं। इसी को लेकर अब लोग कहने लगे हैं कि कुछ अंडरस्टैंडिंग बैकडोर वाली चल रही है क्या? भाई मैं क्या बोलूं, भूमिका क्या है तेजस्वी की, बताइए ना मुझे इन चुनाव में। डज राजद और कांग्रेस रेलिवेंट ऑल्सो इन दिस इलेक्शन? दे बीन आउट ऑफ पावर फॉर द पास्ट 15 years. You can say with confidence, no matter what happens, come 10th November, you are not going to go. आप बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, but you are not going to go the गठबंधन में। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। और 10 तारीख को आप यही बयान मेरा मुझे सुनाइएगा अभी वापस, बिल्कुल भी नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा प्री पोल अलायंसेस किए हैं, चुनाव के बाद किसी की सरकार बनाने को उसका समर्थन कर दें, ये हम लोगों ने कभी नहीं किया। तो इस बार भी मैं क्लियर हूं कि भैया हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, मैं प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग थे, हैं और रहेंगे। What is one promise that people should look forward in this campaign? What is it that Chirag Paswan is bringing that no other party is bringing on the table for the Biharis? My campaign of Bihar First, Bihari First, that deals with each and every small or big issues concerning the people of my state. If I say between Nitish Kumar and Tejasvi Yadav, who is for Chirag Paswan a bigger evil? Well, why do I need to even compare it this way? I know that I have my positive vision and more than negative politics. I am an optimistic guy, I am an optimistic person. और मैं सकारात्मक राजनीति की तरफ ही मेरी सोच है। कौन गलत है या मैं किसको छोटा करूं खुद को बड़ा दिखाने के लिए, मुझे जरूरत नहीं है।